Hello and welcome. I'm Sajad and you're watching Kashmir News Service. Today I'm joined by one of the young District Development Council members from Sagam, Nasir Lon. Nasir has been vocally speaking for the political and development rights of his people. He is speaking and seeking a better life, better service to his people. Nasir is the Mascom pass out and from a political background, from a political family. So we got an opportunity today to speak with him. So let me directly go to Nasir. Sir, फर्स्ट बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला सिंस परहैप्स आफ्टरनून आई एम वेटिंग फॉर यू टू हैव यू ऑन कश्मीर न्यूज़ सर्विस सो आई विल फर्स्ट बिगिन बाय सेइंग टू यू दैट you have won the DDC election from Sagam and you have been, as I said, that you have been vocally speaking for the rights, political rights developments of the people, and I would like to know from you that how successfully you believe that you have provided a better life, a better service to your people from all these months. First of all, thank you so much for having me. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I think if I talk about the district development councils and if I talk about myself, the way these elections were announced and the way people participated in these elections, तो एक बहुत ज़्यादा expectations थी लोगों को जब ये announce किए गए elections, जिस तरह से announce किए गए और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है इसको प्रोजेक्ट किया गया एज द न्यू एपिसेंटर विज़-अ-वी डेवलपमेंट. तो उसी वजह से जो है लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत गर्मजोशी से पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शंस में. अगर मैं अब पिछले ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने का सफ़र देखूं तो कहीं ना कहीं पर्सनली मैं फ़ील करता हूं कि जिस तरह से हमें वो एक डिफरेंस क्रिएट करनी चाहिए थी ग्राउंड पे, आई डोंट थिंक फेयरली उस तरह से हम लोगों डिफरेंस क्रिएट कर पाए हैं. अब चूँकि ये एक नया सिस्टम था, नया निज़ाम था जो कि इम्प्लीमेंट किया गया जम्मू कश्मीर में, तो आई थिंक एक लर्निंग प्रोसेस भी है. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें क्लैरिटी नहीं है और इवॉल्व हो रहा है सिस्टम. तो बट पर्सनली मुझे लगता है कि वी कुड हैव डन मच मोर, बट होपफुली आगे जाके जो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 महीनों का, तो आई होप कि आगे जाके जो है हम जो है हमारा सिस्टम है और ज़्यादा रिफाइंड हो जाए और ज़्यादा इवॉल्व हो जाए. जहाँ तक लोगों के मसाइल की बात है, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जिस फोरम पे जाऊँ उस फोरम पे जो है उनकी आवाज़ पहुँचाऊँ, उनके जो मसले हैं, मसाइल है, बिकॉज़ लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और हमें प्यार दिया, वोट दिए, तो उन्हें एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. तो कोशिश ये रहती है कि जो उनके मसले मसाइल है वो हर एक फोरम तक पहुँचे, जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचे और जल्द से जल्द जो है उसका हल मिल पाए. Sir, Nasir, I would like to know from you since this three-tier system came up in a place, so कहा जा रहा था कि just to address the problems at grassroots level कि एक access होनी चाहिए कि जो नीचे से भी बंदा उस तक भी हम पहुँचे. So ultimately they came with up this three-tier system, पंचायत राज, DDC, BDC and other. So आपको क्या लगता है कि how successfully this system has served the purpose just to reach at the grassroots level? Do you feel that some extent this system has reached at the grassroots level, just to know the problem at? I think of course it is a good beginning. It is a good beginning, but I would not claim that we have been successfully, we have been successfully able to reach out. Because I would like to add, because since this PDP and BJP government breakdown happened and a vacuum just created up, and then it was just thought that this system will come up, it will just fill up this vacuum. तो लगता है कि कहीं पे जो vacuum उस टाइम हुआ था लंबे समय तक, उसके बाद जो फिर इलेक्शंस में पंचायत के, वो vacuum अब कहीं पे fill हो रहा है. Exactly. फील कर रहे हैं कि there is a government at place. Exactly what you pointed out is because there has been a vacuum, a political vacuum for the past 2 years, and that is why when these elections were announced and we came out victorious, people suddenly saw that ray of hope. Suddenly they saw elected representatives जिनके पास वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं
और उनका हल जो है ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इट वाज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट, इट वाज़ अ वेरी गुड प्लान ऑन पेपर and the way it was projected. But like I said, unfortunately, when it came to implementation, that has not been the case. There has been a gap. But like I said, it is a new system. So, for example, जैसे MLA होते थे पहले, तो MLAs का एक क्लियर कट पावर होता था, एक बाउंड्री होती थी, डायमेंशन होती थी, या उनके एक क्लियर कट फंड्स होते थे, बाकी चीज़ें होती थी। तो एक क्लैरिटी होती थी काम करने में, और एक प्रेसिडेंस था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं MLA बनता हूँ तो मुझे पता था कि मेरे से पहले जो MLA थे वो किस तरह से काम करते थे, उनका सिस्टम ऑफ वर्क क्या था, या ऑफिसर्स को भी पता था, लोग भी अवेयर थे कि लोग भी अवेयर थे, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि हाँ जी, ये हमारे MLA साहब है, इनका ये पावर है, ये जो है इनका रोल है। हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं रही है। हमारे केस में बिकॉज देयर इज़ नो सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स, कोई इससे पहले DDC काउंसिल नहीं था, एक नया काउंसिल बना। सो बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो डिलेड, आई थिंक इट मतलब टिल द इलेक्शंस द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, द गवर्नमेंट न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज टू बी डन, बट वंस वी एज मेंबर्स वर इलेक्टेड, उसके बाद एक हिट एंड टाइल मेथड रहा है। There was no clarity as to like this is going to be this. Exactly. There was no plan on paper. But like I said कि एक सिस्टम है जो इवॉल्व हो रहा है, और ऑफ कोर्स चूँकि पहली बार है तो कमियां भी हैं और क्लैरिटी नहीं है। बट होपफुली मुझे पर्सनली ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, जैसे जो हमारा पिछले मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का जो डिस्ट्रिक्ट प्लान भी गया, उसमें भी चूँकि जल्दबाजी में हुआ और क्लैरिटी नहीं थी, डिपार्टमेंट्स ने पहले ही प्लान बनाए थे, हम लोगों को भी उतना टाइम नहीं मिला था कि हम जाएं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में घूमें और एग्जैक्टली देखें क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको हम प्रायोरिटी दे सकें। तो वो एक गैप रह गया, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर में है थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो, और हमसे भी जो है सलाह मशवरा ज़्यादा हो, ताकि हम एज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज़ जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं तो लोग हमसे एग्जैक्टली जैसे वो एक MLA के पास जाते थे अपने इश्यूज़ लेके, वैसे हमारे पास आते हैं। बट हम कहीं ना कहीं मतलब नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, MLAs का एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड होता है, तो उसमें क्या आसाइश रहती थी कि जैसे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे और आपको कोई ऐसा रोड मैप होता है, नॉट जस्ट रोड में, आपको एक ऐसा इशू दिखता था विच इज़ जो थोड़ा अर्जेंट करने की ज़रूरत होती थी, तो वो जो है वो फ़ंड उसमें इस्तेमाल होता था, बिकॉज़ वो आपके बैक एंड कॉल पे रहता था। तो जो वो मसला है वो जल्द से जल्द हल हो जाता था। हमारे पास वैसा कोई फ़ंड नहीं है, तो हमें रिलाई करना पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है या जो पंचायत के प्लान है उस पर, और वो भी जो है वो एक ही बार में दिए जाते हैं। तो अब जब आप मतलब एक ही बार में दे रहे हैं या शुरुआत में ही दे रहे हैं, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं आपको कोई नया इशू सामने आता है तो आप वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में। So my next question to you is कि to be honest, the reason behind to speak with you, not just that you are very highly qualified, because I have heard from people that you are very in a close contact with people, कि आपकी तबीयतन भी एक नरम शख्सियत है, तबीयतन भी नरम इंसान है। तो यही रीज़न है कि और योर कंसर्न्स आर नॉट जस्ट इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सगाम बट बियॉन्ड दिस इंटायर कुपवारा। सो यही रीज़न है कि मैं आपके पास आया कि जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, Kupwara just have a vast potential of tourism sector. If we talk, we have a Lola Valley and Bangs. Despite having such huge potential, I haven't heard from anyone. We have almost 14 DDC members. किसी ने आज तक नहीं कहा कि किसी से, like we have people from outside, from India, from other ministers, they have been on visit here. तो किसी ने इन टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं की। हमारे भी यहाँ जिस तरह अगर गुलमर्ग प्रमोट हो सकता है, दूध पत्री हो सकती है, या गुरेज में इवेंट हुआ है, वो इतनी दूर जगह, तो यहाँ पे ऐसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा कि जो इन चीज़ों की बात करे। तो यू हैव बीन स्पीकिंग कंटिन्यूसली, तो आप क्या देखते हैं, क्यों इन चीज़ों पे बात नहीं होती कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, क्यों इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है? आई थिंक एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसीज़, चूँकि हमारा फोकस ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे रहता है और उन मसले मसाइल पे रहता है जो हमारी
हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है। बट आई थिंक मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं इनफैक्ट रिसेंटली हमारे मिनिस्टर्स आए हुए थे सेंटर से, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि एटलीस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, आप देखिए जब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में टूरिज़म की बात करते हैं तो बंगसुर लोलाब पहले आ जाता है ना ज़ुबान पे, मगर आप केरन जाएं, आप मच्छिल जाएं, आप टंगढार जाएं, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट दीज प्लेसेस हैव फॉर टूरिज़म इज़ इमेंस। तो मतलब बॉर्डर टूरिज़म का इतना इमेंस स्कोप है, तो मतलब पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है, नॉट जस्ट बंगस एंड लोलाब, बाकी सारे एरियाज़ भी। बट कहीं ना कहीं वो एक विल की कमी है। और अगर आप तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को देखें, मोर और लेस सबसे पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है अभी पूरे JNK में, तो थोड़ा एक विल की कमी है आई थिंक। और जो मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक इशू रेज़ किया, हमारे मिनिस्टर्स आज जब आए हुए थे, यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब आप हाईवे देखें हमारा जो हमें कनेक्ट करता है श्रीनगर के साथ एंड द रेस्ट ऑफ द वैली के साथ, वो 2 लेन हाईवे है। मतलब इट इज़ सच अ बेसिक थिंग कि जब तक यहाँ पे वो एक 4 लेन हाईवे नहीं होगा, ईज़ ऑफ ट्रैवल नहीं होगा, कम्यूट नहीं होगा, हाउ विल यू एनकरेज पीपल टू कम एंड विजिट हियर। तो दीज इश्यूज़ आई थिंक आर फार मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ जैसे हमारा लोलाब का जो है बांडीपुरा के साथ बिल्कुल बहुत बहुत करीब है, मतलब बांडीपुरा से एक जो है एक बीच में छोटा सा हिल इसको डिवाइड करता है, वहाँ का रोड का प्रोजेक्ट है। वो भी मतलब अगर वो हो जाए तो एक दोनों तरफ से कनेक्टिविटी आएगी, तो लोग आएंगे जाएंगे। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारे इश्यूज़ भी जो हैं, अदर दैन जो माय लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ भी जो हर फोरम पे पहुँचाऊँ। तो मैं आगे भी इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कुपवारा जो है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है टूरिज़म मैप पे आए, और पोटेंशियल इतना है कि इंशाल्लाह वी कैन डू वेरी वेल। और ये ऐसा इशू है कि अगर ये चीज़ हो जाती है, इट विल सॉल्व आवर अदर इश्यूज़। जब आपका एरिया एक टूरिज़म मैप पे आ जाता है तो रोड्स अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपने आप हो जाती है, बिज़नेस जो है अपने आप ग्रो करने लगता है। तो आई थिंक इट विल बी माई एंडेवर कि मैं कोशिश करूँ जहाँ जहाँ जिस फोरम पे मैं जाऊँ, ये इशू जो है मैं पर्टिनेंटली हर जगह इंशाल्लाह रेज़ करूँ। तो आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कुपवारा जो एक टाइम मिल्टन सी का हॉट बेड हुआ करता था, बट आफ्टर दैट अगर हम देखें कि एक लंबे टाइम तक कुपवारा हैज़ बीन द मोस्ट पीसफुल नॉर्मल प्लेस। तो अगर हम वोटिंग की भी बात करें तो वी आर ऑलवेज ऑन टॉप इन कास्टिंग वोट्स। हम वोटिंग की जब आ रही है तो हम सबसे ज़्यादा कुपवारा ही रिकॉर्ड करता है। तो लेकिन जब हम डेवलपमेंट्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स या एजुकेशन या जितने भी इदारे, पानी की या हमारी जो सड़कें, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो किसको आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे, या लोग यहाँ के जो उनको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, यहाँ जहाँ जो लीडर यहाँ पे रही हैं उनको आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे? आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीवन। मतलब मैं किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक पार्टी को मतलब पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगा। डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसा आपने कहा कि 90s के दौर में मतलब कुपवारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड था मिलिटेंसी के हवाले से, तो उस टाइम पे भी आई थिंक वी हैड टू रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। मतलब हमारे ब्रिजेस जला दिए गए थे, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स जला दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर मैं अपने मतलब पिछले 15-20 या 25 साल की बात करूं, जब से मैं मतलब देखा है, ग्रो किया है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट चूंकि हम लोग इतना पीछे थे तो उस पेस पे डेवलपमेंट नहीं हुई है जिस पे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस पेस की कमी रही है। और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि मैं आ जाऊंगा और मैं 4 चीज़ें कर दूंगा तो होगी डेवलपमेंट, नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आज हम मतलब जैसे मैं सोगाम में रहता हूँ, कुपवारा से सोगाम जो है इट्स अ सिंगल लेन हाईवे, ठीक है। 20 साल के बाद वहाँ भी डबल लेन चाहिए होगा या 4 लेन चाहिए होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। सो इट्स नॉट एज इफ आई विल मेक दिस रोड वंस एंड देन इट विल बी डन। ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आप कहीं हाई स्कूल बनाएं फॉर एग्जांपल, या कहीं प्राइमरी स्कूल बनाएं, 10 साल बाद 15 साल बाद वहाँ हायर सेकेंडरी की रिक्वायरमेंट होगी, या जहाँ प्राइमरी स्कूल होगा वहाँ मिडिल स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी।
बट ये है कि थोड़ा आई थिंक द पेस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर एंड होपफुली मतलब लेट्स नॉट लुक एट द पास्ट. जितना हम पीछे देखेंगे उससे कुछ निकलेगा नहीं. Exactly. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. अगर हम आज किसी भी फोरम में जाएं, हम बात करते हैं नहीं जी, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ 2 कदम बढ़ा रहे हैं या हम लोग एक पीसफुल लाइव्स गुजार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बात करें कि जी हमारे कुपवारा में जिस जिस चीज़ की कमी है डेवलपमेंट के हवाले से, उस चीज़ को क्यों नहीं लाए हम. तो मेरे हिसाब से अगर सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुपवारा एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उभर के आ सकता है. तो बट कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह. तो final पे if you have any something you want to something tell, this program is open. I want to give you an opportunity to give any message to your people, to other colleagues जो आपके काउंसिल में हैं या बाकी जो लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा एक ही मैसेज है. एक तो चूँकि मैं एक यंग रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो यंगस्टर्स को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. तो एक तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू बी पेशेंट. आई नो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बट प्लीज़ बी पेशेंट. इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मतलब मुझे आप गाइड कर सकते हैं अपने इश्यूज़ के बारे में, अपने लोकेलिटीज़ के इश्यूज़ के बारे में, वहाँ आप सामने आएँ. और जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप मुझे मजबूर करेंगे कि आपके इश्यूज़ के बारे में जानने के बारे में, उतना ही मैं वो आगे बढ़ा सकता हूँ. दूसरा, आई वुड रियली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल ऑल माय यंगस्टर्स दैट एक तो ड्रग से दूर रहें और सुसाइड जो है उससे दूर रहें. बिकॉज ओवर द इयर्स कुपवारा में काफ़ी केसेस सुसाइड के या ड्रग्स के. तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जिससे मतलब आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं. मतलब हम डेवलपमेंट हर चीज़ से लड़ सकते हैं, मगर जो ड्रग्स है, अगर हमारे यंगस्टर्स जो हैं अपनी ज़िंदगी या जवानी ड्रग्स में ज़ाया कर दें, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. और इफ़ अ यंग kid decides to take his life, I don't think he's doing any good thing for his or her family. वो अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो उल्टा अपनी फैमिली को एक बोलते हैं ना कि मतलब रेगिस्तान के बीच में फेंक रहा है. बिकॉज़ एक सुसाइड से एक पूरी फैमिली डिवास्टेट हो जाती है. तो इन 2 चीज़ों से दूर रहें. अगर आपके पास इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आगे आएँ, डिस्कस करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से. मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. काउंसलिंग लें. मतलब डोंट मतलब सुसाइड और ड्रग्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं. चाहे कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर चीज़ का सलूशन है, बट ड्रग्स और सुसाइड, क्योंकि ड्रग्स में एक बार कोई मुब्तला हो जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दैट चाइल्ड बैक. तो यही 2 मैसेज होंगे मेरी तरफ से. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी प्लीज़ बात करते रहा करिएगा हमारे साथ भी. और आप भी एज अ यंग मेंबर ऑफ द जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको आप आगे लाएं, हमारे साथ डिस्कस करें या एटलीस्ट ऑडियंस के बीच में लाएं, ताकि एक डिस्कशन हमेशा चलता रहे, एक डिस्कोर्स सेट हो कि हम डेवलपमेंट की बात करें और ऐसे सोशल इश्यूज़ पे बात करें. तो आई विल होप कि आप भी जो हैं शाना बशाना हम सब मिलकर इंशाल्लाह जो है कुपवारा को और पूरे कश्मीर को एक तरक्की की राह पे ले जाएंगे. चलो, थैंक यू. Thank you so much. This was the DDC Sagam Nasir Loan. He has said that maybe we have not served as per the expectations of people, but we are putting our all efforts to provide a better life to our people. He has also urged the youngsters to stay away from drugs and suicides. I am Sajad for Kashmir News Service, Kupwara.